ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮೆಟ್ಟಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज। ನಿಮ್ಮ 17-18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು MLA ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು? ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿಯ. SDPI की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जोरदार एहतजाज। ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡವರು ನಾಚಿಕೆ ಕಟ್ಟವರು ಬಿಜೆಪಿ. ನೀವು ಪ್ರೀ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡವರು ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಚಿಕೆ ಕಟ್ಟವರು ನಿಂತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು 50% ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮ್ಮತಾರ್ಹ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ MLA ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಲವು ಚಾನೆಲ್ ನವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज। मैं मोहम्मद जिक्रिया। बैंगलोर के फ्रीडम पार्क में SDPI की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट और कई तंजीमों के लीडरों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2 लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर हुआ। इसी बिल के खिलाफ हजारों की तादाद में आज दोपहर 3 बजे फ्रीडम पार्क में लोग जमा हुए और अपना गुस्सा बिल के खिलाफ दर्ज कराया। तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज की ये रिपोर्ट। जज्बाती नहीं बनेगा। मुसलमान फौज के नाखून के साथ, डिसिप्लिन के साथ गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में ऐसे प्रोटेस्ट करेगा। ये जो प्लेकार्ड नजर आ रहे हैं, एक एक आपके दिल की आवाज उस प्लेकार्ड पर नजर आती है। और हमारे जो भी लीडर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये आज नहीं बोल रहे हैं, 10-15 सालों से मुसलसल बोल रहे हैं। लेकिन हमारी अवाम ऐसी है कि जल्दी सुनती नहीं है। जब हम बोलते हैं उस वक्त में हमें कहते हैं कि आप जज्बाती हैं, सेक्युलर मुल्क है, कैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, जब आपके घर पर बुलडोजर चलेगी, जब आपको दर्द होता है तो आप इंसान नहीं है। जब आपके घर में जनाजा उठता है, सिर्फ उस वक्त में आपको तकलीफ होती है तो आप इंसान नहीं है। इंसान उस वक्त में कहा जाता है जब कोई भी हिंदुस्तानी जिसके घर पर बुलडोजर चलेगी तो हम आवाज करना चाहिए। किसी हिंदुस्तानी के घर में मैयत आती है, उस वक्त में हमें आवाज उठाना चाहिए। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने कोई गलती नहीं की, सिर्फ ये गलती उन्होंने की, वो गलती ये थी कि मुल्क में आने वाले चैलेंजेस को ललकार कर बोलते थे। जब आइंदा आने वाले हालात के ऊपर वो बोलते थे। तंजीमों को बैन क्यों किया गया? तंजीमों के बहुत से लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? ये प्लान 2 साल 3 साल पहले से था। उनको
So, the Waqf Amendment Bill that has been passed, the government is making very big claims about it supposedly helping Muslim women, it's supposedly uplifting Muslims around India. But the reality is that this is only another excuse, another way of further disenfranchising a marginalized community in India. Muslims today in India are facing widespread Islamophobia everywhere in every facet of life, and this is also a part of that same agenda that BJP holds. Bhajpa, this is a part of BJP's politics. BJP's politics of hate. It requires this kind of alienation, this kind of marginalization of communities like Muslims, Adivasis, and Dalit people across India. We are seeing this. Democratic organizations of minority communities are being shut down, are being labeled as terrorists, and are being people are being persecuted under laws like UAPA. So this is all a part of the fascist agenda. कानून तो ज़बरदस्ती मेजॉरिटेरियन प्रोसीजर के तहत कानून पास हुआ है, लेकिन कानून पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल कौन करेगा। कानून बनता है सिटीजन्स के लिए, और स्पेशली ये कानून जो है मुसलमानों के लिए है। तो मुसलमानों को ये कानून पसंद नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ये कानून रिजेक्ट करते हैं और हम एहतजाज करते हैं। मुल्क भर में एहतजाजात की तहरीक, आंदोलन शुरू होगा, और हम किसी हालत से ये कानून को मानने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं मानते कि इसमें वक्त की हिफाजत नहीं हो रही है, बल्कि वक्त को इससे बहुत बड़ा नुकसान है। मुसलमानों को, अक़लियतों को स्पेशली कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से प्रोविजंस हैं। इसीलिए तो हम हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किए थे। आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी का कानून, गांधी का हिंदुस्तान, अंबेडकर का हिंदुस्तान, टीपू सुल्तान का हिंदुस्तान, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं उसको ख़राब करने का मतलब ये है कि इंडिया को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं मानेंगे इसको। ये तमाम हिंदुस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, खुसूसन मुसलमानों की है, और सेक्युलर हिंदूज़ भी धीरे धीरे हमारे साथ आएंगे, लेकिन पहली सफ़ में तो मुसलमानों को होना चाहिए। लेकिन चूँकि SDP एक बेदार कौम है और इसका कैडर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे अवाम साथ में आएंगे। ये वक्फ से मैं और आप फ़ायदा उठाना नहीं है। मुल्क का जो मुसलमान गरीब है, पसमानदा है, बेवा है, यतीम है, मज़लूम है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कॉलेजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, हॉस्टल्स बनाना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन 70 साल में, 80 साल में इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, जिसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ पर एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वक्फ से नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है, नर्सरी स्कूल नहीं शुरू किए लोग, ये हॉस्टल नहीं बनाया। ये इसलिए हुआ कि हम सिर्फ एक पार्टी के पीछे ग़ुलाम बन के जा रहे थे। अपने अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना, सियासी तहरीकों को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशंस को, बिल्स को, एक्ट को स्टडी करना और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तवज्जो देना, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देना, ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या होगा, जो बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं उनको ये दीन से, मिली चीज़ों से वाकफियत ही नहीं है, और जो दीनदार तबका है उसे दीन की इतनी फ़िक्र है कि वो ये चीज़ों को जानता ही नहीं है, और समाजी कारकुन थकते थकते करप्शन की तरफ आ गए हैं, ग़ुलामी की तरफ आ गए हैं। तो ये मिल्लत को उठा के खड़ा करने की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम ज़रूर इसकी तरफ तवज्जो देंगे। एक और अहम सवाल यहाँ पर यह है, वक्फ जब नाम आ जाता है तो करप्शन का नाम आ जाता है, और इस बात से सब वाकिफ़ है कि बहुत सी मरतबा देखा गया कि वक्फ में जो है करप्शन हो रहा है। वक्फ जो बड़ी बड़ी जगहें हैं कम दाम में भाड़े किराए पर दिए गए हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम आकर हमारा एहतजाज करना या हम आकर प्रोटेस्ट करना, ये उनको ही फ़ायदा है, ना कि हमको फ़ायदा है, मतलब एक गरीब आवाम के लिए। तो इस पर आपकी क्या सोच है? ये जो हमारा एहतजाज है सिर्फ वक्त के बारे में नहीं है, मुल्क को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए हैं उसको बचाने के लिए, साथ में वक्फ को बचाने के लिए। वक्फ का माना क्या है? अल्लाह के नाम पर दी हुई अमानत है, उस जो अल्लाह के नाम पर रजिस्टर है उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में, अंजुमनों में चंद करप्ट लोग वहाँ पर आ गए हैं, उनकी धुलाई सफाई ज़रूरी है, वो काम भी शुरू होगा। लेकिन अब वक्त जो है, पहले क़ानून को बचाना है, संविधान को बचाना है, वक्फ को बचाना है। वक्फ बोर्ड को हम आइंदा बचाएंगे, चूँकि नौजवान बेदार हो चुका है, उलमा इकराम अब बात करना शुरू किए हैं और तंजीमें आगे आ रही हैं, और कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, फैसले आ रहे हैं। अब तमाम लोग बेदार हो गए हैं,
हम जाग रहे हैं। आइंदा दिनों में ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से हम सोचेंगे। पहला प्रायोरिटी ये वक्फ बिल को वापस करना है। सर, अब इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं, आगे भी एहतजाज होंगे। ट्रिपल तलाक के मामले पर जो हुआ था वही होगा या कुछ इसमें जो है रिजल्ट निकलेगा? नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क़ानून में जो भी ऑप्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, दस्तूरी जिम्मेदारी है, वो हमें अदा करना है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अगर हर मस्जिद कमेटी एहतजाज करती, हर वक्फ बोर्ड एहतजाज करता, हर आलिम ज़बरदस्त बात करता, तो फिर इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अब हिम्मत क्यों हो गई? इतनी बड़ी मस्जिद गिराने के बावजूद भी, इतनी बड़ी तारीख़ को ख़त्म करने के बावजूद भी नौजवानों के चेहरे पर बल भी नहीं आ रहा है। और उलमाए किराम और दीनदार तबका फिर अपनी नई तस्बीह लेके, नया मुसल्ला लेके, वो तो फ़र्ज़ है भाई, नमाज फ़र्ज़ है, उम्रा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ये तो फ़राइज़ है। ज़िम्मेदारी क्या है? इस हिंदुस्तान में पैदा होने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपलिफ्ट करना, उसे अपहोल्ड करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा नहीं होगा तो अमित शाह बड़ा बन जाएगा, मोदी बड़ा बन जाएगा, राहुल गांधी बड़ा हो जाएगा, सोनिया गांधी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, हर आदमी बराबर है। बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा करके चलेंगे तो फिर नॉर्मल लाइफ चलेगी, अमन शांति रहेगी। मुसलमान मस्जिदों को जाएंगे, हिंदू मंदिरों को जाएंगे, क्रिश्चियंस चर्च को जाएंगे और फिर सिख गुरुद्वारे को जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो हिंदू मस्जिद को आएंगे और मस्जिद खोद के मंदिर को तलाश करेंगे, हिंदू जो है हलाल की दुकानों में आएंगे और झटके को तलाश करेंगे। तो ये कब होगा? ये इसीलिए होगा कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, मुल्क के सेक्युलरिज्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की उनकी जो कोशिशें हैं उसकी ये 1-2 सीढ़ी है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमारा नौजवान जो बिज़नेस में है, धंधे में है, कारोबार में है, एक एक नौजवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। कुछ तो बोलें, ज़रूरी नहीं माइक में बोलना, ज़रूरी नहीं मीडिया के सामने बोलना, ज़रूरी नहीं कैमरे के सामने बोलना। ये एक दूसरे भाई को बात करो, आप वक्फ के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बात करो। जिंदा कौम बनो, मुर्दा लाशों से कोई हिंदुस्तान में फ़ायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़रूर मुल्क के अंदर नौजवानों को, उलमाए किराम को, NGOs को, तमाम को मजबूत करेंगे, उठा के खड़ाएंगे। हिंदुस्तान भी मजबूत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी मजबूत होगा, मुसलमान भी मजबूत होगा। एक तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है, एक काला क़ानून जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद में पास हो चुकी है, अभी सिर्फ़ एक प्रेसिडेंट का एक दस्तखत होना बाकी है। वो भी हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट भी उन्हीं के नशे कदम पे चलने वाले प्रेसिडेंट हैं। तो इस हिसाब से अभी हमें जो बचा हुआ रास्ता है वो सड़क है। संसद तो ख़त्म हो गया है, अभी सड़क बाकी है। तो ये सड़क पे आना एक कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोविज़न दिया गया है, मुल्क के अंदर हम एहतजाज दर्ज कर सकते हैं। तो इसी के ज़ेर एहतमाम जब ये पिछले सेशन में जब एक वक्फ की बिल को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी वक्त पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी तमाम मुल्क के अंदर ये कोशिशें कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आज SDPI के जानिब से हो रहा है, सिर्फ ये SDPI की ज़िम्मेदारी नहीं है, तमाम मुल्क में रहने वाले शहरियों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं है। क्योंकि आज मुसलमानों का है, कल सिखों का भी होगा, कल हिंदुओं के अंदर भी जो है अफरा तफरी किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने का एक मौका है। तो ये एहतजाज करना हमारा मुल्की हक़ है, तो हम कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सालों से ये वक्फ के ताल्लुक से वक्फ बचाओ आंदोलन शुरू किया था कि आने वाले दिनों में ऐसी हालत आने वाली है, लेकिन देर से ही सही कौम जो है अभी जागी है। हम चाहते हैं कि ये जाग कर ये हमारे संविधानिक हक़ के तहत एहतजाज को मुल्क भर में गली गली के अंदर भी इसको आम करें, ताकि
ये कानून को वापस लेने में मजबूर होकर ये हिंदुस्तान की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत वापस लें और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो इनको सपोर्ट करके ये बिल को कामयाब कर रहे हैं, इन लोगों को भी इनके आने वाले दिनों के अंदर उनके रियासत के लोग जो है सबक सिखाएंगे और जब तक ये लोग वापस नहीं लेंगे हम भी अपना कदम जो है पीछे नहीं रखेंगे बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज का एहतजाज दर्ज किया है। अभी जो वक्फ बिल पास हुई है इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा, तो इसमें आपका प्रोटेस्ट क्यों है? मुसलमानों की अगर सच में फलाह बहबूदी है, मुल्क की जो बीजेपी फिस्ताई ताकत है वो अगर हकीकत में मुसलमानों का भला चाहती तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस कम्युनिटी को जितना पॉपुलेशन के हिसाब से उसको रिजर्वेशन देना चाहिए था, वो रिजर्वेशन अगर मिल जाता तो हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिला हुआ था, बेहतरीन सा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ होता, ठीक उसी तरह से हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन मिल गया होता। जबकि ये बिल को पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में जो है क्लियरली जिसमें बताया गया है कि आपको जो मज़हब पसंद है उस मज़हब को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप और उस मज़हब की अफेयर्स को डे टू डे जो है आर्टिकल 26 के हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आप हमारा अफेयर्स संभालने के लिए किसी दीगर नॉन मुस्लिम को अगर हमारे ऊपर बिठाएंगे तो ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द-बदल करने की साजिश है और इसको मुसलमान की इशू समझ कर नहीं देखना है, इसको इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द-बदल करने की कोशिश की जा रही है। इसके मुखालिफ में मुसलमान रास्ते पर उतरकर एहतजाज कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, बहुत सारे ज़मीनें जो है बेच खा गए हैं, इसलिए हम लोग आपकी फलाह बहबूदी के लिए आए हैं, हम वक्त बचाएंगे, इस तरह से। ये बीजेपी की दोगली सियासत अगर देखनी हो तो कर्नाटक में जो है अनवर मानप्पाड़ी की रिपोर्ट थी वो इन्हीं की पार्टी ने इम्प्लीमेंट करने को बात की गई थी, जबकि अनवर मानप्पाड़ी ने जो है हाई कोर्ट तक अर्जी दायर की थी कि उनकी रिपोर्ट को जो है टेबल किया जाए, डिस्कस किया जाए, लेकिन उस पार्टी ने कभी डिस्कशन भी नहीं किया। वो वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली बातें सिर्फ उनकी ऐसे ही रही हैं। अब अगर आप आगे देखें तो वक्फ की प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करने की जब बात आ रही है तो इसमें से मेन जो चीज़ें निकाली गई यानी कि वक्फ बाई यूज़र जिसको कहा गया। अभी मिसाल के तौर पर देखिए, अगर कहीं पर एक दरगाह है, वहाँ पर एक अल्लाह वाले का आरामगाह है, अब कहाँ से आप वो पेपर लाकर बताएंगे कि इस दरगाह को किसने दिया? तो ऐसे चीज़ों को जो है कानून के चश्मे से देखना चाहिए, ना कि आरएसएस के चश्मे से। अगर आरएसएस के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको जो है वो लाल किले की जो जगह है जहां पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी बात करते हैं वो भी हमारे आबा व अजदाद ने दी है। देखिए, हम लोगों की इतिहास में हमने देखा है शाहीन बाग। शाहीन बाग जो है दिल्ली में ही सिर्फ शाहीन बाग नहीं हुआ था, हमने दावणगेरे में किया था जहाँ पे काफ़ी सारे बीड़ी वर्कर्स औरतें थी। हम लोग दूसरे दीगर मज़हब के लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसी फ्रीडम पार्क में हो सके तो इसी संडे से इसी इतवार से हम लोग यहाँ कंटिन्यू प्रोटेस्ट करने का एहतमाम कर रहे हैं। अगर ऐसी सूरत में प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ, मैं समझता हूँ न कि सिर्फ मुसलमान, SC ST और OBC काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। ऐसे लोगों का साथ हम लोगों ने CAA NRC में देखा है और इसमें भी भरपूर साथ रहेगा। फाइनली मैसेज क्या रहेगा आपका? देखिए, इस मुल्क के संविधान को जब बनाने की बात आई तब भी मुसलमान खड़े हुए थे और इस मुल्क के संविधान को जब बचाने की बात आ रही है तब भी यही मुसलमान खड़े हैं। आज आपने देखा होगा एहतजाज में 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। हम उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले मुस्तकबिल में इस मुल्क को वो लीड कर सकें। तो हमारा मैसेज ये है कि इस मुल्क के संविधान के हिसाब से हुकूमत चलनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी क्यों ना हो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगी, हम उसको अगले चुनाव में उठाकर फेंकेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चलेगी उसको लाकर हुकूमत बनवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है नीतीश कुमार की पार्टी है या देवेगौड़ा की पार्टी है, वहाँ पे मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, एक बड़ी ताज्जुब वाली बात रही, पिछले 1.5-2 साल पहले मैं एक प्रोग्राम में जो है देवेगौड़ा जी के साथ में था। उनको चलने को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत उम्र हो गई है, ज़ईफ़ हो गए हैं, मगर उनका जो क्रेज़ मैंने कल पार्लियामेंट में देखा, मुझे ऐसा लगा
मुसलमानों की जब बात विरोध में करनी आए तो इनको एनर्जी कहाँ से बूस्ट हो जाती है मुझे नहीं पता। इसको साइंटिफिकली अगर आप देखें, इसको कहते हैं एड्रीनोक्रोम। वो एड्रीनोक्रोम जो है, एड्रीनो ग्लैंड जो है रिलीज करता है, तब जाकर एनर्जी बूस्ट होती है। मैं समझता हूँ इस मुल्क का एड्रीनो ग्लैंड जो है वो मुसलमान है। तो ऐसा एनर्जेटिक लीडर जब पार्लियामेंट में आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपको उस पार्टी को बीच रास्ते पर खड़ कर सारे लोगों को रेजिग्नेशन देकर आप दूसरे जहां समानता की बात करते हैं वैसी पार्टी में जोड़कर काम करने की सख्त से सख्त। ये आज बड़े दुख की बात है कि एक इतना 20 करोड़ का आबादी हिंदुस्तान में चंद लोग जो रिप्रेजेंटेशन है बैठकर सिर्फ वोटिंग में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये बिल पास हो जाए। वक्फ ये आज का नहीं है, हमको आज़ादी मिलके लगभग 75 ईयर्स 75 साल हुआ है। ये 1400 साल से चलने वाली एक वक्फ की ये चल रही है, इसके खिलाफ ये लोग, ये आप देख सकते हैं 2014 से लेके आज तक ये जो सरकार बैठी है सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के शरीयत के चीज़ों में ये इन्वॉल्व होकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार पार्लियामेंट में भी बताया है, वक्फ एक्ट सेक्शन 40 बोलकर हाईलाइट किए हैं। ये जो सेक्शन 40 है ये लोग टारगेट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, कांग्रेस को, लेकिन उसके इन डेप्थ में जाकर ये लोग डिटेल नहीं दे रहे हैं। और हमारी एक बदनसीबी है कि हमारे बिहाफ में, मुसलमानों के बिहाफ में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो बात करना है, ये चीज़ लेके जाके पार्लियामेंट में रखना है, आज हमारे पास नहीं है। ये हमारी एक बदनसीबी है और इस वक्फ एक्ट को हम लोग टोटली रिजेक्ट करते हैं। ये हमारी लड़ाई शुरू हुई है आज नहीं, जब से ये लोग जेपीसी बनाए तब से हम लोग शुरू हुए हैं। इतना रिप्रेजेंटेशन हमारे पब्लिक से गया है, रखने देने के बावजूद भी इसके खिलाफ ये लोग इसको पास किए हैं। देखिए अभी कानूनी लड़ाई तो अभी हो नहीं सकती, अभी एहतजाजी लड़ाई होगी। आज बहुत से दूसरे कौम में भी हमारे साथ, मुसलमानों के साथ आके जुड़े हैं। अभी आप इधर देख सकते हैं, इधर एहतजाज में आइंदा आने वाले दिनों में भी हम लोग रोड पे निकलकर हम लोग इसका खिलाफ करेंगे। यही है हमारा, ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान को जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट जाएगी। देखिए कानूनी लड़ाई है, वो लड़ाई तो पैरेलली चलती रहेगी, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमारा जो एहतजाज है, आवाम का जो आवाज़ है, ये लोगों तक पहुंचना है। ये लोग बैठ के उधर बिल पास करके एक्ट बना देंगे तो उसको इफेक्ट होता है आवाम को, मुसलमान की कौम को, तो ये लोग रोड पे निकलेंगे। यही है हमारा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। कानूनी एतबार से हम लोग इसको एहतजाज करेंगे।